یا وارث یا وارث یا وارث، حرف تیکھے اور لہجہ ادب کا، حرف تیکھے اور لہجہ ادب کا، وہ کیا ہنر ہے گجب کا، وہ کیا ہنر ہے گجب کا۔ تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کہ ان دنوں سوشل میڈیا پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل رسول، جن کو حضور قبلہ بندہ نواز سرکار عالم پناہ وارث پاک عظم اللہ ذکرہ کہتے ہیں، تو ان کی شان مقدس کو لے کر سوشل میڈیا پہ بہت ہی بحث اور مباحثہ ہوئی ہے، جس کے متعلق گلوبل نیوز سے یہ ایک لیٹر خطوط تیار کی گئی ہے جو ٹرسٹ کے جانب سے ہے، جس میں لکھا ہے گزشتہ کئی مہینوں سے سوشل میڈیا، فیس بک، واٹس ایپ وغیرہ پر حضور قبلہ عالم کی شبیہ مبارک کے ساتھ ہو رہی بے ادبی اور ناشائستہ حرکتوں سے متعلق جملہ برادران وارثی کو آگاہ اور خبردار کرنے کی غرض سے من جانب ٹرسٹ مؤرخہ 9 اپریل 2021 کو ایک خط شائع ہوا، ٹھیک ہے، جس کا مضمون حضور قبلہ عالم کی شبیہ مبارک کے ادب و احترام اور پردہ کے خاص اہتمام پر مبنی تھا۔ یہ خط سوشل میڈیا پر شائع ہوا، لوگوں نے پڑھا، سمجھا اور ٹرسٹ کے اس اقدام کو خوب سراہا، نیز جملہ برادران وارثی نے اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے میں کافی اہم کردار ادا کیا۔ من جملہ خط سے ہمارا جو مقدس یعنی کہ مقصد تھا، ٹھیک ہے، اس میں ہمیں کافی حد تک کامیابی ملی۔ اس دوران سوشل میڈیا پر شبیہ مبارک کے تعلق سے ہو رہے تبصرے اور مکالمے کو لے کر کچھ لوگ کا رویہ کافی حیران کن رہا، وہ یہ کہ ان کی طرف سے بحث و مباحثے کا ایک طویل دور شروع ہو گیا، نازیبا تبصرے اور الزام تراشیاں ہونے لگی، اخلاقیات کو حد عبور کر گئے، یہاں تک کہ ذاتیات پر حملے کرنے لگے۔ اس طرح یہ بحث بے محل رخ اختیار کرنے لگی اور معدود لوگ اپنی کم فہمی کی بنیاد پر اصل مقصد سے دور ہوتے چلے گئے۔ البتہ اکثریت نے نفس مشعلہ کو سمجھا اور اس کی پرزور تائید و توثیق بھی کی، چونکہ ہمارا مقصد شبیہ مبارک کے تعلق سے لوگوں کو روشناس کرانا تھا، جو ہم نے کیا۔ جنہیں سمجھنا تھا وہ سمجھ گئے اور جنہیں نہیں سمجھنا تھا وہ اب بھی اپنی ناسمجھی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، چونکہ حضور قبلہ عالم کی بارگاہ میں نہ خلافت ہے نہ جانشینی، نہ خلافت ہے اور نہ جانشینی ہے، نہ خلافت ہے نہ جانشینی، اس لیے مشعلہ حاجہ یعنی کہ مشعلہ حاجہ کی بابت کسی کو حکم قطعی نہیں کیا جا سکتا، بتایا اور سمجھایا جا سکتا ہے، جیسا کہ خط کے عنوان سے آیا ہے۔ واضح ہے کہ سوشل میڈیا پر ہو رہے تبصرے اور بحث و مباحثے پر غور و فکر کرنے کے بعد چند ایسی باتیں کھل کر سامنے آئی ہیں جن میں براہ راست ٹرسٹ کو مرید الزام ٹھہرایا گیا ہے۔ اچھا، پہلے نمبر 1 یہ کہ شبیہ مبارک کو کلیات ختم کر دینا چاہتا ہے ٹرسٹ، جبکہ ایسا نہیں کہا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ٹرسٹ احرام پوش کے خلاف ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ ٹرسٹ مولویت غالب آ گئی ہے، ٹرسٹ پر مولویت غالب آ گئی ہے۔ بتانا چاہتا ہوں کہ پورا خط میں نہ تو شبیہ مبارک کو ختم کرنے کے حوالے سے اور نہ ہی کسی احرام پوش کے خلاف کسی طرح کی کوئی بات کہی گئی ہے، یہ محض اپنی ذہن اختراع ہے۔ یہی رہی بات ٹرسٹ پر کسی جماعت یا کسی سوچ اور فکر کے غلبے کی، تو میں دو ٹوک بتا دینا چاہتا ہوں کہ ٹرسٹ نہ تو کسی کے مغلوب ہے اور نہ مرعوب، نہ ہی کسی دباؤ میں فیصلہ کرتا ہے، یہاں سب کچھ قبلہ عالم کے ارشادات و فرمودات کی روشنی میں ہوتا ہے، اس کے خلاف نہیں۔ آخر میں تمام غلامان وارثی سے عذر کرنا چاہتا ہوں کہ اب سوشل میڈیا پر شبیہ مبارک کے حوالے سے جو بحث و مباحثے اور تبصرے چل رہے ہیں اس کو وہیں ختم کیا جائے، اور جو لوگ اپنی سستی عزت، غور کریں، سستی عزت و شہرت اور ذاتی مفادات کی خاطر اس بحث کو اپنا مدعا بنانا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں اور اس بحث کا حصہ نہ بنے۔ اللہ پاک سب
अल्लाह पाक हम सब को हुजूर वारिस पाक अज़मल्लाहु ज़िक्रुहु के दरे पाक की मुंसलिक रखे और अपनी मुती व फरबंदार बनाए और अपनी इरशादात व फरमुदात पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाही सैयदुल मुरसलीन। नोट वाज़ेह हो कि सोशल मीडिया व फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ठीक है, गूगल वगैरह पर ट्रस्ट का अपना कोई अकाउंट नहीं है और ना ही वगैरह वेबसाइट है। लिहाजा कोई शख्स या इदारा ट्रस्ट की तरफ मंसूब करते हुए कोई मैसेज वायरल करता है तो इसका जिम्मेदार वो खुद है। ट्रस्ट का उससे कोई लेना देना नहीं। ट्रस्ट के जुमला खतूत और पैगामात उसके लेटर पैड पर इशू होते हैं जिस पर ट्रस्ट के जिम्मेदार की मुहर और दस्तखत होते हैं। साद महमूद वारसी, मैनेजर आस्थाना आलिया, देवा शरीफ, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश, इंडिया। ये थी खतूत जो मैंने आपके सामने पढ़ा। अब यहाँ पर सिर्फ हमारी एक ही अल्फाज है, उसके आगे कोई अल्फाज नहीं। सच क्या है कि आज इस दौर पे हर शख्स जो है लाइक इल्म है, जहन रखता है, लॉजिक को समझता है। कई चेहरे आए बदल बदल कर ताकि सोशल मीडिया पे शबीए मुबारक को रोकी जाए। पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट ये है कि मेरा एक ही चेहरा आया और मैंने कभी भी ट्रस्ट के खिलाफ कुछ ऐसा नहीं कहा जैसा कि आप सुन रहे हैं। तीसरी बात कि इन लोगों ने कहा कि इनके ज़ातियात और इखलाकियात और कई ऐसे मामलात पर हमने हमले किया, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। इन्होंने मेरा नाम इशू नहीं किया, लेकिन ये साफ जाहिर हो रहा है ये किनको कह रहे हैं। लेकिन एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ, क्लियरिफिकेशन लोगों के सामने करना चाहता हूँ कि जब से ये मुद्दा आया है मेरे जानिब कई लोग मुझे हर तरीके से टॉर्चर किया है। हर तरीके से टॉर्चर करने की बात यह है कि हर तरीके से समझाया गया है, चाहे वो इखलाकन हो, चाहे वो प्यार से हो, चाहे वो किसी भी तरह से हो, ताकि आप रुक जाएं। अब यहाँ एक बात है कि आप रुकना नहीं चाहते लेकिन हमें रुकना चाहते हैं। क्या ये तानाशाही नहीं? अगर ये तानाशाही है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि सरकार आलम पना वारिस पाक अज़मल्लाहु ज़िक्रुहु के यहाँ जानशीनी और खिलाफत नहीं है, जो कि आप मान भी रहे हैं, लेकिन आप कह रहे मसला हाजा है। तो अगर ये मसला आपके सिलसिले में है तो ये सिलसिला मसला नहीं है और हमारा सिलसिला कोई मसलक नहीं बना, ना ही मसलक बना है। इस सिलसिले से मसलके इसमें नहीं चलती, इसमें तो मोहब्बत चलती है ना। सरकार आलम पना ने फरमाया कि हम खिलाफत क्यों दें, खिलाफत की ही तो झगड़ी थी ना, करबला क्यों हुई, खिलाफत की वजह से ही हुई ना। तो लिहाजा ये बात को मैं आप लोगों के सामने ज़हीन करना चाहूँगा कि देखिए अल्फाजों के साथ अदबन पेश आना और हकीकतन पेश आने में बहुत फ़र्क होता है। एक सीधी सी बात कह रहा हूँ, जो इंसान जैसा दिखता है कुछ इंसान वैसे होते भी हैं और ज़्यादातर इंसान वैसे होते नहीं हैं, दिखते कुछ और हैं, होते कुछ और हैं। तो इसलिए मैं कहना बस इतना ही चाहूँगा इन शॉर्ट कि जिस तरीके से ये मतलब नोटिस को, एक तरह का खतूत को लोगों तक वायरल करने की पूरी तरह से ज़िम्मा दिया गया है मुरादाबाद के कुछ ठेकेदारों को, तो वो कर रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जबकि यूपी से यानी कि बाराबंकी देवा शरीफ ट्रस्ट से ये लेटर इशू हुआ, तो ज़ाहिर है लेटर सिर्फ देवा शरीफ से इशू हुआ तो पूरी की पूरी जो है स्टेट के जितने भी वारसियत के मानने वाले हैं सभी माने, लेकिन मुरादाबाद इसका जड़ हो गया। अब इस चीज़ को समझना मुरादाबाद क्यों जड़ है। अब ग्लोबल न्यूज़ चलता है, यानी ग्लोबल न्यूज़ का खबर का आप तो जान सकते हैं कि मीडिया अभी किस तरीके का क्या काम कर रहा है, और बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि जो सरकार अभी चल रही है उस सरकार ने मीडिया के साथ किस किस तरह से जो है अपना काम करवाया है, काम किया गया है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि देखिए हक हक है, बातिल बातिल है। मेरा मकसद शुरू से रहा है सरकार आलम पना वारिस पाक की शबीए मुबारक को सोशल मीडिया पे छोड़ी जाएगी, जैसा कि आप कह रहे नहीं छोड़ी जाएगी। आपने कहा एडिटिंग का मामला, छेड़छाड़ का मामला, बेअदबी का मामला, उस पर मैं भी तो सहमत हूँ। मैंने अपने हर वीडियो पर एक ही लफ्ज़ कहा कि मैं भी गलत एडिटिंग के खिलाफ हूँ, लेकिन ये बातें आप लोगों को और अंध भक्तों को सुनाई नहीं दी जा रही है। लेकिन ये बातें सब साफ साफ समझ में आ रहा है कि मैं आपके खिलाफ हूँ, क्योंकि आप इसलिए मुझे अपने खिलाफ समझ रहे हैं क्योंकि आपकी जहनियात पर मौलवियत अगर गालिब नहीं है तो फिर ये इस तरीके का जो है माहौल क्रिएट करना ये क्या हो रहा है। क्या सिलसिला वारसिया नहीं जानता कि उसको सरकार आलम पना वारिस पाक की अदब करना है? पहला नोट।
दूसरी बात यह है कि क्या सिलसिला वारसिया में जितने भी लोग बैत होते हैं अपने अहराम पोशों से, क्या वो अहराम पोश नहीं बताते कि सरकार की शबीय मुबारक को घर में पर्दे के साथ रखो? फिर ये खुलेआम बताने का मकसद क्या है? तीसरी बात कि सिलसिला वारसिया में जितने भी अहराम पोश हैं, जो रहबर हैं, क्या वो रहबर अपनी मुरीद को तालीम नहीं देते कि सिलसिला वारसिया में किस तरीके से जो है सिलसिले में रहना है? अब आप कह रहे हैं कि आपके ज़ातियात पर हमला की जा रही है। अगर ज़ातियात पर हमला की जाती तो मैं किसी भी तरह से आपके मुतल्लिक कोई भी बेबुनियाद की बातें करता। मेरी मौजू दो ही पर रही, एक मुरक्का और दूसरा पर्दा। पर्दे को भी आपने इतना पर्दा बनाने की कोशिश किया कि मजबूरन मुझे पर्दा उठाना पड़ा। अब आप कह रहे हैं कि मुरक्का जो तस्वीर को हम लोग रोशनास कराना चाहते थे, रोशनास किसे कहते हैं? रोशनास किसे कहते हैं? लफ्ज़ रोशनास के कई मायने हैं। इसमें से एक मायने ये भी है कि मैं सरकार आलम पनाह की शबीह मुबारक पर रोशनी देना चाहता हूँ, है ना जी? यानी कि एक तरीके से उसमें जो है इल्मी नुक्ता, एक तरीके से उसकी अदब, उसकी एहतराम, उसकी मंजिलत को समझाना चाहता हूँ। यही लफाज है। अब क्या सिलसिला वारसिया में जो सरकार आलम पनाह से मुरीद हो रहे हैं, क्या वो सिलसिला वारसिया में इतना नहीं जानते कि अपनी पीर व मुर्शिद की अदब करना? लेकिन आप अदब बता रहे हैं। तो बताने का मकसद इतने दिनों के बाद क्या आखिर रीज़न आ गया? अब मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको किसी तरीके से जो है सोशल मीडिया पर हम लोगों ने उनके साथ कुछ किया नहीं। हमारे साथ बहुत कुछ हुआ है जो बताना मैं नहीं चाहता। अब मैटर ये है कि सोशल मीडिया पे ऐसे आपके कई अंधभक्त पड़े हैं जो ख़ास तौर पे चुनौतियों के साथ-साथ धमकियाँ भी दे रहे हैं कि यहाँ तक कि आपकी आईडी को भी ब्लॉक और बंद कर दी जाएगी। लेकिन एक बात मैं सीधी-सीधी कहना चाहूँगा कि जो भी चीज़ बंद करवाए वो अच्छी नहीं होती। जो चीज़ें इजाद करवाए वो अच्छी होती है। दुनिया में अगर कोई चीज़ इजाद होती है तो वो किसी के खिदमत के काम आती है। लेकिन कोई चीज़ अगर बंद की जाती है, उस पर रोकी जाती है, उस पर पाबंदी लगाई जाती है तो वो अच्छी नहीं हो सकती। अब पाबंदी को अगर समझना है तो करबला की तरफ चलें, पाबंदी लगाने वाला कौन था? अब पाबंदी हटाने वाला कौन था? इसलिए मैं एक ही बात को पूरी मुद्दे पर यही कहना चाहूँगा कि जब तक ये मुहिम को आप लोग खुद नहीं रोकेंगे, ये मुहिम बंद होने वाला नहीं है। सिलसिला वारसिया में सरकार आलम पनाह की शबीह मुबारक छुटती थी, छुटती है और छुटती रहेगी। अब आप कह रहे हैं सोशल मीडिया पे ना छोड़ें क्योंकि इनसे इनकी अदब में, इनकी शान में गुस्ताखियाँ हो रही है, तो ये बेबुनियाद की बात है। कुछ मुझे ऐसा मुद्दा बताएँ आप, कुछ मुझे ऐसा रीज़न्स बताएँ जिस रीज़न को मैं एक्सेप्ट कर सकूँ। लॉजिकली इस बात को जो है किसी भी ज़हनियात के रखने वाले इस बात को नहीं मान सकते। ये सरकार आलम पनाह की शबीह मुबारक सोशल मीडिया में आ रही है तो बेहुरमती हो रही है। क्या आप नहीं जानते कि जब खाना काबे में जो है तवाफ होती है तो उस वक्त लाइव दिखाई जाती है टीवी में? ये भी तो सोशल मीडिया है। क्यों सोशल मीडिया में सऊदी अरब से तो ये इशू नहीं करना चाहिए? लोग घरों में बैठकर जो है मदीनातुल मुनव्वरा की ज़ियारत करते हैं। क्या ये शिर्क नहीं है? शिर्क बहुत सी चीज़ें हैं। बेकार में इन सब बेबुनियाद बातों से, बेबुनियाद मकसदों से सिलसिला वारसिया के मुरीदैन को, मुरीदों को आप गुमराह ना करें। और मैं तनवीर अमीन वारसी बस एक ही बात को बार-बार कहना चाहता हूँ, जो लोग ये सोच रहे हैं कि मैं सिलसिला वारसिया में किसी तरीके से लोगों को गुमराह कर रहा हूँ, तो ये इस चीज़ को सुन ले कि मैं किस बिने पे गुमराह करूँगा। मेरे पास गुमराह करने के लिए कौन-सी बातें हैं? आपने खुतूत तय किया, आपने खुतूत लोगों को मतलब एक काम दिया, लोग उस पर काम कर रहे हैं और बेसाख्ता बहुत अच्छी तरीके की एडिटिंग कर रहे हैं, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी-अपनी अल्फाज़ों के ज़रिए, चेहरे के ज़रिए, बदल-बदल कर सूरतों के ज़रिए आ रहे हैं, पैगाम पहुँचा रहे हैं। यहाँ तो एक ही सूरत चल रही है और एक ही सूरत की बात हो रही है, वही जो सरकार आलम पनाह वारिस पाक अज़मल्लाहु ज़िक्रुहू ने इरशाद फरमाया। इसलिए सिलसिला वारसिया पे अगर कोई तालीम चलेगी तो सिर्फ़ और सिर्फ़ सरकार आलम पनाह की चलेगी और किसी ऐसे मुल्ला और मौलवी और किसी भी तरह के आलिम की नहीं चलेगी। क्योंकि सिलसिला वारसिया में सरकार ही हमारे आलिम है, सरकार ही हमारे रहनुमा है, सरकार ही हमारे पीर व मुर्शिद हैं और उसके अलावा हम किसी की नहीं सुनते। इसलिए आप इस चीज़ को समझ लें कि आप जो ये लेटर, ये खुतूत तय किया गया है कि सिलसिला वारसिया में शबीह मुबारक नहीं छोड़ी जाएगी सोशल मीडिया पे, तो इस चीज़ को आप वापस लें और जैसी सिलसिला वारसिया पे आप तालीमात को पेश नज़र करें, हमें आपसे कोई एतराज़ नहीं। आपका काम जो है आप वो करें, हमारा जो काम है वो हम कर रहे हैं। वल वारिसुल करीम, या वारिस या वारिस या वारिस।